Hands on your heart. Inhale slowly, exhale slowly. Center yourselves. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Choa Kok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Mailing, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, angels, archangels, spiritual guides, guardian angels, we invoke for your blessings. May all the questions we have in our mind, may we reach up to the answers. May all that is required at these times to learn, to understand, to have knowledge, may this session bring up all those things in our life. May each one of us is guided to the right path to fulfill the destiny of their lives. Thank you, all the beings, for being present here, guiding us, understanding our life purpose, understanding how to deal with life, how to deal with situations, and all such many episodes in life. Thank you, angels of internet, for being around to help us have a smooth running session. Thank you. In full faith, inhale the blessings. आत्मा नमस्ते. So, सबसे पहले ये session was supposed to be a part of numerology course जो मैं लेती हूँ सबके लिए. But then I thought, let's share it with the whole world. क्योंकि ये बहुत interesting knowledge है और इसमें बहुत सारी mathematics या calculation हमको ज़रूरत नहीं है. बहुत आसान तरीके से we can understand many things in our life. So I thought of taking this. This was one part. Second, every Monday मैं एक angel meditation कराती हूँ. तो today we will talk about one part, जो कि आज का हमारा main session है. फिर हर Monday, whoever comes to do the meditation and bless the world in these times, they get a added information. Okay? So what is the session about? So आज का सेशन ये है कि about angel numbers. So what are angel numbers? Before going to that, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि we come across situations जहां हमें ये समझ में नहीं आता what to do, how to go about it. क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? क्या जो मैं चूज कर रही हूँ लाइफ में वो चीजें सही है? या कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा हार्डशिप्स, एंड यू गेट रियली मैड कि क्या करूँ, भगवान मैं ही मिली थी क्या? ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में, वाई मी, हाँ ना. सो आज मैं आप लोगों को एक तरीका सिखाऊंगी. उस तरीके का मेन बेनिफिट क्या है? टू चेंज योर वाइब्रेशन. सो ये जो सारी नॉलेज है, इस सारी नॉलेज का पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ इतना है कि जो ये दुनिया में इतना कुछ हो रहा है बवाल, because of this COVID, so many people are dying and so much is happening. So let us not focus on this. So कल ही मैं ब्रह्म कुमारी शिवानी का एक सेशन देख रही थी, तो वो ये बोल रही थी, rather than seeing कि how many people are dead or how many cases have come across, let us focus how many people have healed. कितना सारा ऑक्सीजन एडेड मिल गया, कितने लोगों को बेड्स मिल गए. सो लेट अस फोकस ऑन राइट थिंग्स, क्योंकि गलत चीजों पे फोकस करके वैसे भी कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है. हम डिप्रेस हो रहे, घर में एनर्जी को डिप्रेस कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारों को पता भी नहीं है हो क्या रहा है, दे आर वेरी डिप्रेस्ड, दे डोंट इवन नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम. So the whole idea behind this session and keeping it free, the reason is कि let the whole humanity learn what to do. छोटा सा अटेम्प्ट है. आई एम नॉट अ वेरी गुड, ज्यादा लर्नर्ड या कुछ भी नहीं हूँ. छोटा सा अटेम्प्ट है मेरा ये करने के लिए, बट लेट्स डू इट. ओके, सो एंजल नंबर्स. उससे पहले व्हाट आर एंजल्स, हु आर दीज एंजल्स? तो इसका बहुत लंबा चौड़ा एक डिस्क्रिप्शन है. आई विल जस्ट कम टू द डिस्क्रिप्शन वी नीड. तो हमारी लाइफ में बहुत सारे एंजल्स होते हैं.
किन्हीं को हम स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, किन्हीं को हम गार्जियन एंजल्स बोलते हैं, किन्हीं को हम आर्क एंजल्स बोलते हैं. सो वो मेडिटेशन किस पे है? आर्क एंजल्स. सो इस बार मंडे को आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ये जो एंजल्स है, ये हमें लाइफ में ना सिग्नल्स देती है. तो उसका एक पार्ट है एंजल नंबर्स. बाकी पार्ट हम हर मंडे को एक एक पार्ट लेंगे. कभी सिंबल्स लेंगे, कभी ये लेंगे कि हाउ टू अट्रैक्ट एंजल्स, what all we have to do related to this. We will discuss every Monday 15 मिनट वो, फिर meditation. So if you like, do join it. ठीक है. अब एंजल्स को पहले हम एंजल वर्ड को समझते हैं. एंजल क्या है? एंजल वर्ड हैज कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंजेलोस, जिसका मतलब है मैसेंजर. सो दीज एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड. अब क्या होता है? भगवान है, वी आर प्रेइंग टू गॉड. He cannot come down and tell us. He is very much there. तो उन्होंने भगवान और हमारे बीच में एंजल्स बनाए. और गार्जियन एंजल्स सबसे इंपॉर्टेंट एंजल्स है, उसके बारे में 2 मिनट में बात करूंगी. गार्जियन एंजल्स वो एंजल्स हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, या रादर जिस दिन हमारा डिसाइड होता है ना कि ये वाला सोल आएगा तुषार चारण बन के जमीन पे, उस दिन ही आई एम असाइन्ड विद 2 गार्जियन एंजल्स. वो था विद मी. अब क्यों 2 मिनट बात करूंगी? गॉड फॉरबिडन आपका कोई भी फैमिली मेंबर बीमार है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, अकेला है, वो अपने उसके साथ उसके गार्जियन एंजल्स है, वो उनको बुला सकता है. अब इन एंजल्स की स्पेशलिटी क्या है? दे डू नॉट हैव, या देवदूत, दे डू नॉट हैव फिजिकल बॉडी. ओके. और वो हमसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल बॉडी होगी जब ही तो बोल सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं. ऐसा वो उनके पास नहीं है. दे आर जस्ट एनर्जी फॉर्म. ओके. एंड ये जो गार्जियन एंजल्स है, भगवान ने इनको ऐसा वरदान दिया है कि तुम बात नहीं कर सकते. जैसे मेरे जो गार्जियन एंजल्स है, दे कैन नॉट टॉक टू मी, बट इफ आई कॉल देम, प्लीज हेल्प, मुझे नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, माय गार्जियन एंजल्स प्लीज हेल्प, आई एम गेटिंग दीज गूज़बम्प्स. हेल्प विल कम टू यू. कैसे भी आएगी, कोई मैसेज, कोई फ्रेंड, कोई कॉल, एनी, बस आपको क्या करना है? प्लीज है. सो जो भी बीमार है, जो भी पेशेंट है, ये भी एक रीजन था. वी आर नॉट अवेयर. इतनी जबरदस्त पावर हमारे पास है गार्जियन एंजल्स की. एंड जो भी आज के सेशन में मैं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ वैलिडेटेड है. एज माय गुरु सेज, बिना वैलिडेशन में कुछ भी नहीं बताती. तो ये गार्जियन एंजल्स को मैंने जिंदगी में बहुत बार यूज किया है. ओके. सो इवन इफ योर चिल्ड्रन हैव एग्जाम्स एंड दे गेट स्टक विद द आंसर्स, उनको नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, इन्वोक फॉर योर गार्जियन एंजल्स. अगेन वैलिडेटेड. दे कम. आपको जवाब आता है याद, या कोई सीक्वेंस याद आती है. सो दिस इज द पावर ऑफ गार्जियन एंजल्स. कभी इनके लिए इंडिपेंडेंट सेशन लेंगे. I will share my life experiences about this, but you can always call them. आपको पार्किंग नहीं मिल रही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको वैक्सीन लगाए, कोविशील्ड लगाए, call your these angels. They will tell you. They will, कुछ ऐसा बढ़िया सा सिंबल आएगा सामने एकदम से कि आपको करना क्या है. So any confusion in your life, these are your protector things, जो sort of आपके पेरेंट्स की तरह है. पेरेंट्स से भी पहले हमें मिले हैं, और जब हम when we breathe our last, तब तक वो हमारे साथ होते हैं. बाद में वो हमारे ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं. ओके. नाउ these angels, भगवान ने ये एंजल्स को हमारी लाइफ में भेजा है टू हमारी मदद करने के लिए, हमारे को असिस्ट करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए. कई बार आपने नोटिस किया है, मूवीज में या न्यूज़पेपर में एक स्टोरी आती है कि someone was boarding the flight and all of a sudden he got stuck in the traffic jam and he missed the flight and the flight got crashed. उसका एंजल, again I'm getting these goosebumps, आज पूरे दिन goosebumps होने वाले. ओके. सो उनके गार्जियन एंजल्स या उनके एंजल्स, किसी ने उनको रोक दिया था.
and they were saved. So idea क्या है, पूरे दिन you keep talking to your these angels, या उनका presence को feel कीजिए ताकि और signals मिलेंगे और awareness रहेगी. Okay, so these angels are हमारे असिस्टेंट्स हैं, हमारा प्रोटेक्शन, और भगवान, यूनिवर्स या क्रिएटर के साथ हमारा कम्युनिकेशन. सो if God wants to tell me, like, see, I was taking this session, I had planned to take this session पिछले 2-3 दिन से. तो आई वॉज जस्ट सोच रही थी क्या करूँ, शुड आई कीप सम मनी फॉर इट, क्योंकि जब आप पैसे नहीं रखते तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते एंड दे डोंट कम फॉर द सेशन. आप इतनी मेहनत करते हो एंड यू फील अनहैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी 82 लोग हैं. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग फॉर द सेशन. सो देन आई वाज लुकिंग फॉर द आंसर्स. यस नेहा, थैंक यू सो मच, बट वी ऑल आर एंजल्स. अभी आप समझोगे कैसे. So I was looking for this answers. You won't believe, Facebook पूरा में ना मुझे एंजल्स ही एंजल्स के नंबर्स मिल रहे थे, जो आज हमारा टॉपिक है. एंड सबसे आउटस्टैंडिंग बात क्या हुई, कल एक हमारा हीलिंग सेशन था, एंड द मोमेंट वी क्लोज द सेशन और आवर टीचर आस्क्ड अस टू ओपन आवर आईज. जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे सामने क्या दिखा, 111. It was amazing, it was an amazing thing to happen. So obviously my angels, my God told me, keep it free, people will come. So thank you everybody. So these angels are always talking to us through any kind of symbol. So आज हम लेंगे angel numbers. हमारे चारों तरफ नंबर्स होते हैं. अभी जैसे मैं ये लैपटॉप देख रही हूँ, इसमें भी मुझे नंबर्स दिख रहे हैं. 3:18 हुए हैं मेरे लैपटॉप में. सो यू कीप सीइंग, if I see chats, there are 14 chats. You keep seeing, if I see numbers, there are 84 people now. So there are so many numbers around us. So आज जो भी बात हो रही है वो उन नंबर्स की हो रही है जो रेपिटेशन है. हर रोज आपको दिखता है सेम नंबर. Every day you come across the same number. It can be 12-12, 11-11. तो सबसे पहले मेरा फेवरेट नंबर 11-11. ये कहानी शुरू हुई है 7-8 years ago से, 11-11. और अब मेरी पूरी फैमिली, सबको पता है. Everybody is like 11-11, come on. So 11-11 की क्या पावर है? It is a manifestation number. So whenever you come across this number, आप ये जरूर सोच सकते हैं कि God is telling you, you are on a right path, and कुछ भी मांग लो इस समय, कुछ भी मांग लो, it will manifest. अब आप ये मत मांग लेना कि मैं यूएस रेसिडेंट बन जाऊं. बी रियलिस्टिक एंड डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी एज वेल. हाँ, मांगो वही चीज जो आपको लगता हो कि अचीवेबल है. थोड़ा सा भगवान, क्योंकि विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस हम ले सकते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली विश मांग ले, बट नॉट दैट कि. सो इफ यू सी रिपीटेड 11-11, दैट मीन्स the gods are with you, the angels are with you, and something good is manifesting in your life, so you can bless. So what I believe, कोई एक particular wish है. So हम छोटी petty issues में wish को ना गवाएं कि गोलगप्पे मिल जाए मुझे आज खाने को, या मेरी favorite साड़ी खरीद लूं. Please don't do this. Ask for bigger things. So maybe अभी गुड कर्मा जनरेट करने का इतना अच्छा ऑप्शन है. आपके कोई ग्रुप में मैसेज आया है कि say about Akash is not getting a oxygen cylinder, and you come across 1111. It can be on your microwave, it can be on your laptop, your watch, anywhere. Page number, कहीं भी. Bless this Akash. आपको नहीं पता कौन है आकाश. Just bless. Thank you God. उसको कैसे भी सिलेंडर मिलवाने के लिए. You never know what all you can get. Okay? So अभी disheartened नहीं होना है. हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास options नहीं है. आपके पास आज के बाद angel numbers की power है. So I will talk mainly basic numbers. और जिन लोगों ने numerology पढ़ा है, they know how to decode. इतने सारे numbers हैं, कैसे उन सबको. तो कई बार we come across, some numbers like 619. आप हर रोज 619 देख रहे हो एवरी डे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिपीटेड, हर रोज एक चीज हो रही है आपके साथ.
आप हर बार 619 देख रहे हो, आप जब घड़ी में टाइम देखते हो तो 6 o'clock 19 minutes है, माइक्रोवेव पे देखा तो 6:19 आ गया, तो देन यूज योर माइंड। सो न्यूमरोलॉजी जिसने सीखा है वो आराम से कर सकता है। सो ये क्या मतलब है, ज्वाइन माय कोर्स। बट एनीवेज, आज जो मैं आपको जो नॉर्मल नंबर्स है उनके बारे में बताऊंगी, तो मे बी यू आर एबल टू डिकोड दीज नंबर्स ऑल्सो। ओके, सो ये एंजल नंबर्स हमारे लाइफ में रिपीटेड इनका होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर बंदे के लिए इन नंबर्स की एक अलग वैल्यू है। जैसे रेड कलर को हम लेते हैं, अब रेड कलर क्या है, कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, वो मेरे लिए हो गया। अब मुझे एकता दिख रही है सामने, उसको रेड कलर देखते ही लगता है गुस्से वाला है, एंगर वाला कलर है ये। तो देन जब भी एकता लाल रंग देखेगी उसको लगेगा ओके ये डेंजर साइन है, कहीं से गुस्से का कुछ होने वाला है। और मैं जब रेड कलर देखूंगी मुझे लगेगा वाओ, लक्ष्मी जी कहीं से तो आ रही है किसी रूप में। सो फॉर एवरी पर्सन, everything that is happening in life has a different meaning. So आप क्या कर सकते हो, आज के सेशन से भी जान सकते हो, और नहीं तो पॉज करिए और सोचिए कि ये लाल रंग देखने पे मुझे कैसा महसूस होता है। क्या मुझे अच्छा फील होता है, क्या मुझे गुस्सा फील आता है, क्या मुझे डिप्रेस फील हो जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको रेड से डिप्रेशन भी हो जाता है। और मुझे याद दिलाना, जब सेशन कंप्लीट होगा मैं आपको मेरी रेड की स्टोरी बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। So this is how, so what I want from all of you who all have collected here to attend this session, जो मतलब मैं बता रही हूँ नंबर्स का, आप वही मतलब को बार बार रिपीट करते रहे। So as master says, repeated thoughts becomes habits, you know. So जो वो लाल रंग है वो प्रोस्पेरिटी पे ही रहना चाहिए, एंगर पे आना ही नहीं चाहिए। So this is how we are going to change our vibration. So आपने देखा है बच्चों को जब हम स्माइल देते हैं बच्चा इमीडिएटली स्माइल कर लेता है, यू नो। बड़े लोगों को हम स्माइल देते हैं तो वो 2 मिनट सोचता है, मुझे दे रहा है, इसको दे रहा है, क्या कर रहा है। फिर वो सोचता है, फिर वो कहता है ओके अच्छा मुझे ही दे रहा है, ठीक है, वो स्माइल करता है। कभी वो ना भी करे, पर बच्चा, उसको जब आप मुस्कुरा के देखोगे वो मुस्कुराएगा वापस, बिकॉज these people are always, बच्चे are vibrating on high vibrations, you know, positive high vibrations. So जो negative vibrations है वो low vibrations है, पॉजिटिव हाई है। तो बच्चे क्या होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। हम कई बार नहीं बोलते अगर बच्चों के मुंह से कोई बात निकली है तो जरूर वो भगवान का कोई संदेश है, बिकॉज वो ना हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट। फिर जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं उनको मम्मी कुछ कहती है, पापा कुछ कहते हैं, दादी कुछ कहती है, फ्रेंड्स कुछ कहते हैं, वो टीवी में शिनचैन देख लेते हैं, फिर वो शिनचैन की तरह बोलने लग जाते हैं। तो यू नो दे गेट मैनिपुलेटेड एंड डाइल्यूटेड हो जाती है उनकी सारी इनोसेंस एंड पॉजिटिविटी। सो हमारा आज का सेशन का गेम आइडिया क्या है, टू रेज ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। सो वन डे आई विल टेक द सेशन how to raise ourselves. Meanwhile, you can meditate, you can join pranic healing. सबसे बड़ा जो चैनल है ना to raise your vibration is pranic healing. But और 10 तरीके हैं, आई कैन टीच यू ऑल दोस तरीके, बट आज का सेशन एंजल नंबर्स। सो सबसे पहला नंबर 0। अब बचपन से हमने क्या सुना है, 0 लाया है डफर है, हमने तो यही सुना है 0। सो 0 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। आज से हम 0 के लिए एक नई वाइब्रेशन। सो व्हाट इज 0? 0 भगवान का नंबर है। जब आपको 0 दिखता हो कहीं, understand it is God who is around you, it is a creation of God। क्योंकि 0 क्या होता है, it doesn't have beginning, it doesn't have ending। वो इनफाइनाइट एक पावर है आपके पास। गोल, पृथ्वी कैसी है, गोल, सब चीजें जो भी गोल है उसमें सब कुछ समा गया है। सो हम उसको क्या सोचेंगे, वो एक अच्छा नंबर है, भगवान का नंबर है, क्रिएशन ऑफ गॉड। सो 0 इज अ गुड नंबर। इफ यू सी ट्रिपल जीरोस, हाँ, सो अगर आप
एक नंबर एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, 4 बार देखते हैं, सबका मतलब अलग है। मेनली क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, वो और पावरफुल होता रहता है। एक बार एक नंबर देखा, उसका एक, ठीक है, आपको 2 रुपए मिलने वाले हैं। डबल दिख गया वही नंबर, आपको 4 रुपए मिलने वाले हैं। 3 दिख गया, 9, ऐसे करके, तो द इम्पैक्ट इंक्रीजेस विद एवरी नंबर, द इम्पैक्ट इंक्रीजेस। देन अंडरस्टैंड वन थिंग, चलो वो बाद में बताते हैं। So where were we? Yeah, 0. So 0 is a very good number. Never get disheartened when you get zeros around you, because God is with you. Okay? Then comes the number 1. तो जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है या न्यूमरोलॉजी पढ़ा है, उन लोगों को पता होगा कि 1 की क्या पावर है। सो 1 को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको कंटिन्यूस वंस दिखते हैं। इट कैन बी नंबर 1, इट कैन बी डबल 1, इट कैन बी ट्रिपल 1, या डबल 1, एनी काइंड्स ऑफ वंस, देन यू कैन बी अश्योर्ड कि जो आप कर रहे हो वो सही है। जो भी चीज आप कर रहे हो, यू नो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, बच्चों का रिश्ता ही करने जा रहे हैं, मान लो रास्ते में जा रहे हैं, यू कीप सीइंग दीज 1 नंबर कार्स, यू नो, किसी का 1 नंबर है या डबल 1 है या डबल वन आपकी घड़ी में है, तो देन यू कैन बी अश्योर्ड कि यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, देन कम्स द नंबर 2। नंबर 2 की एक, अगर एक वर्ड बोले नंबर 2 के लिए, तो वो है इंट्यूशन। नंबर 2 इज इंट्यूशन या रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स है या पार्टनरशिप्स है। अगेन बच्चे का रिश्ता करने जा रहे हो, 2s दिख रहे हैं, मीन्स आप जिस लड़की को देखने जा रहे हो या जिस लड़के को देखने जा रहे हो, वो आपके बच्चे के लिए सही है। माइंड यू, यू हैव टू कीप सीइंग इट, यू नो, आपको एटलीस्ट 2-3 बार इसको देखना है। चाहे आपने जब अपना रिस्ट वॉच में देखा तो आपको 2s दिख गया, आपको अपना स्पीडोमीटर में कुछ 2 वाली दिख गई, आपने अपना फोन खोला तो आपको मैसेजेस दिख गए कि 22 मैसेजेस यू हैव टू रीड, and so on. You know, you should have multiple repeating. The word is repeating. It should be repetitive. Okay. अब इन टूल्स का और मतलब होता है कि आप बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, या यू मेड नेहा अस्थाना योर पार्टनर। अब मैंने नेहा अस्थाना को मेरा पार्टनर बना लिया, एंड नाउ आई एम सेइंग एंजल्स प्लीज बताओ क्या ये मैंने सही किया या गलत किया। एंड देन आई इमीडिएटली कम अक्रॉस ऑल द डबल 3 आ गया नेहा। नेक्स्ट नंबर इज डबल 3। सो अगर आप बार बार मुझे 2s दिखेंगे, तो दैट मीन्स द यूनिवर्स इज टेलिंग मी शी इज द राइट पार्टनर फॉर मी, सो आई कैन चूज हर एंड आई कैन मूव अहेड। तो जब आपको बार बार 2 दिखता है, तो मे बी जो आपके पार्टनरशिप्स हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो सही है। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमारा कोई नया फ्रेंड, न्यू फ्रेंड कम्स इनटू आवर लाइफ, एंड वी आर थोड़ा स्केप्टिकल कि सारी दुनिया बोल रही है ये गलत लड़की है, इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, व्हाट टू डू, प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी, एंड यू स्टार्ट सीइंग दीज टूल्स। दैट मीन्स वो लड़की आपके लिए अच्छी है, वो लाइफ पार्टनर अच्छा है, वो बिजनेस पार्टनर अच्छा है। या कई बार क्या होता है, हम हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, हमारा पति, उससे हम नाराज हो जाते हैं, हमें लगता है भैया वो तो हमारे को बहुत हर्ट कर रहा है और वो हमें लव नहीं करता, ब्ला ब्ला व्हाटएवर वी कीप थिंकिंग। सो अगेन इफ वी कम अक्रॉस दीज टूल्स, पेज नंबर खोला तो 22 खुल गया बुक का, कुछ भी, तो दैट मीन्स ही लव्स यू, ही इज गुड फॉर यू। सो चेंज योर वाइब्रेशन, एंड व्हेन यू चेंज योर वाइब्रेशन, आपका हस्बैंड आपको लविंग लगने लग जाता है। ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। So this was about, so this is a number of partnership, connection, relationships, harmony, intuition. So कई बार ऐसा होता है कि ये इंट्यूशन का नंबर है, तो कई बार हमें ऐसा कहीं से एक थॉट आता है, एक आइडिया आता है, यू नो, कि लेट्स क्रिएट अ इंडस्ट्री, एंड यू आर नॉट श्योर कि ये इंडस्ट्री बनाऊं कि नहीं बनाऊं, खोलूं कि नहीं खोलूं। तो अगर आपको टूल्स दिख रहा है,
दैट मीन्स दे आर सपोर्टिंग योर इंट्यूशन. ओके, 2 क्या है? सपोर्ट वाला नंबर है. देन समटाइम्स अगर हम अकेले ही हैं और हम ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा सोल, हमारी आत्मा हमारी हेल्प कर रही है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प कर रहा है, एंड देन इफ यू कम अक्रॉस, इफ यू आस्क दीज क्वेश्चंस एंड इफ यू कम अक्रॉस टूल्स, दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सोल, योर इनर बीइंग इज विद यू. ओके, सो इट्स अबाउट द पार्टनरशिप. डुअलिटी है, दो चीजों का मिलन. ओके, देन द नंबर 3 जो कि मेरा नंबर है, and I am so grateful to God is given me this number. क्यों? क्योंकि ये नंबर है होली ट्रिनिटी का नंबर, द नंबर भगवानों का नंबर. और अगर हम लेमैन लैंग्वेज ले तो नंबर ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, यू नो, सब कुछ है हमारे पास. a number of communication, a number of guiding people, which is I'm doing, or a number of balance. So if you keep seeing these repetitive threes in your life, you know, triple threes, yes, amazing. So we all are on right path, all of us. This is amazing. Thank you Pranuta and Neeti. So मैंने भी देख लिया. So जब आपको ये ट्रिपल थ्रीज दिखते हैं, उसका क्या मतलब है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए हैं धरती पे आपकी मदद करने के लिए, एंड यू आर बैंग ऑन द राइट पाथ. एंड जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, बढ़िया काम हो रहा है. कई बार ऐसा होता है कि लाइक दीज डेज आई एम टेकिंग क्लासेस, और मे बी हम प्राणिक हीलर्स के इतने सारे नर्चरिंग सेशंस हो रहे हैं, तो समटाइम्स व्हेन वी सी रिपीटेड थ्रीज, दैट इज एन इंडिकेशन कि हमें ना तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करना है, बॉडी माइंड एंड सोल. सो जस्ट डोंट गेट टू मच इनटू सोल अवेकनिंग. बॉडी पे भी आ जाओ, दिमाग पे भी आ जाओ, तो फैमिली पे भी आ जाओ, मटेरियलिज्म पे भी आ जाओ. ये भी हमको इंडिकेट करता है. या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, लाइक इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, अगर आपको थ्रीज दिखता है, तो दैट मीन्स कि नथिंग टू फियर, यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ एंड यू आर लीडिंग टुवर्ड्स योर एनलाइटनमेंट. सो कोई जनरस एंजल आएगी, सोल आएगी, बुक आएगी, चैप्टर आएगा, नर्चरिंग सेशन आएगा, जो आपको हेल्प करेगा to develop on all these 3 aspects of your life, body, mind and soul. Okay, so it's a very good number. Then ये एक नंबर का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये मेरा नंबर है, इसलिए ये नंबर है जुपिटर का. और जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, जिसने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, उन सबको पता है कि जुपिटर हमको क्या क्या नहीं दे सकता, सब कुछ. सो चलो एक टिप भी दे देती हूँ. जब कुछ अच्छा शुरू करना चाहते हो, कंफ्यूज्ड हो, डिप्रेस्ड हो, डाउटफुल हो, राइट ट्रिपल थ्री, राइट डबल थ्री, राइट ओनली 3, कुछ भी लिख लो, काम हो जाएगा. ओके, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एनर्जी आ जाएगी. सो बचपन से हमने क्या सुना था पता है? आपको बताती हूँ, इतना इंटरेस्टिंग, ये तो बता ही देती हूँ. इट इज सो इंटरेस्टिंग कि छोटे थे जब हमने सुना था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, and I had absolutely denied this number from my life. मुझे लगा जब 3 दिख रहा है, उफ, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है. और जैसा मन वैसा काम, वैसा ही होता था. और now after coming to pranic healing, now I know the power of number 3, what it is. So you know, आपकी कॉन्शियसनेस जब समय आता है तभी अवेकन होते हो. और आज जो आप इतने सारे लोग आए हो, certainly your consciousness is rising up, certainly. कुछ तो बढ़िया सा ड्रामेटिक अच्छा वाला स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में. ओके, सो थ्रीज पे हम ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे. सो अ नंबर ऑफ रिन्यूअल, समथिंग न्यू, अ नंबर ऑफ ट्रांजिशन, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, अच्छा वाला. हाँ, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन का एक मतलब ये भी होता है कि आपके साथ बुरा होएगा, बट थ्रीज इज इंडिकेट, वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं है, ये ट्रिनिटी है, त्रिदेव. इट्स अ गुड नंबर.
Now the next number comes number 4. So triple fours. अब ट्रिपल फोर सिंस अगेन एस्ट्रोलॉजी को लो तो राहु का नंबर है, तो हम डरते हैं इस नंबर से, बट डरिए मत। न्यूमरोलॉजी में एंजल नंबर्स में ये नंबर है स्टेबिलिटी का। अब इसको कैसे समझेंगे हम? एक तूफान आया और फिर सब ठहरता है, तो हम क्या सोचते हैं कि वो तूफान पे कंसंट्रेट करते हैं। बवाल आ गया, अरे बवाल के बाद थमेगा तो सही ना। सो वो जो थमने वाली स्टेट है वो ट्रिपल फोर है। सो इन केस जो अभी इतना सारा बवाल वाला सिचुएशन चल रहा है, एंड इफ यू कम अक्रॉस दीज ट्रिपल फोर्स, देन खुश हो जाइए, क्योंकि एक तो ये एंजल नंबर है ट्रिपल फोर, द एंजल्स आर अराउंड यू। सो जो थ्री वाला था ना, उसमें थे आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ। कौन? भगवान, लॉर्ड बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, ऑल द गॉड्स वर विद यू। ट्रिपल फोर में कौन है? एंजल्स आर विद यू। सो डोंट फील स्कैर्ड। अगर आपके बहुत सारा टर्बुलेंस है लाइफ में, बहुत सारा कयास है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैस अप, एंड इफ यू सी दीज ट्रिपल फोर्स, बी हैप्पी। थमने वाला है तूफान, स्टेबिलिटी आने वाली है। चार क्या होते हैं? चार पांव होते हैं हमारे टेबल के, और टेबल क्या होती है? स्टेबल होती है। सो इट्स अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। एंड होम एंड फैमिली, अगर आपको बार बार फोर्स दिखते हैं तो अंडरस्टैंड आपका ध्यान। सो ये जो नंबर्स होते हैं वो हमारा ना ध्यान आकर्षित भी करते हैं। दे ट्राई टू पुल अस टू अ डायरेक्शन। I will take the questions in the end, please. I get distracted in the flow, so please, I will give you time, okay? 3 नंबर वाली पर्सन हूँ, खूब सारा देने के लिए रेडी हूँ। सो व्हेन यू सी दीज नंबर्स, आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो जब आपको ट्रिपल फोर्स दिखते हैं, तो ऐसा भी है आप बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी हो, एंड आप अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दे रहे, घर पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ गड़बड़ हो रहा है वहां पे, यू नो। सो अब लोग क्या कहते हैं कि राहु का नंबर है, मतलब हमारे साथ बुरा होता है। तो वो क्या बता रहे कि बुरा होने वाला है, ध्यान दे दो, look, something, some तूफान is coming, be alert, be। so क्या करना है इस सिचुएशन में? I'll take a moment. So कल एक मेरी क्लाइंट या मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम आपको एस्ट्रोलॉजी इतना अच्छे से आता है, एंड यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ द ट्राइंग टाइम्स दैट आर कमिंग, टेस्टिंग टाइम्स, जो बुरा वक्त आ रहा है, तो आप कैसे डील करते हो? सो एज आई टोल्ड यू, आई एम अ नंबर 3। सो अपने तो डरते ही नहीं है किसी चीज से, टच वुड। फिर मास्टर चोआ भी आ गए और नहीं डरते। बट हाउ आई डील विद दीज सिचुएशंस इज कि ये जो ट्रिपल फोर वाला तूफान आ गया आपके सामने, invoke for your angels, invoke for your guardian angels। so जैसे अब मंगल किसी का खराब आ गया, तो एक्सीडेंट इंडिकेटेड है, सर्जरी इंडिकेटेड है, क्या करोगे आप पूजा करा लो, जप करा लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, खुद कर लो, हनुमान जी को बुला लो, मदद, यू नो, आस्क फॉर हेल्प। सो आई डोंट से कि डिनायल हो जाएगा लाइफ में, बट जब हेल्प होती है, जब हम अवेयर होते हैं, जैसे हमें पता है सामने गड्ढा है और कार अगर उसमें बम्प करती है, तो वी आर अवेयर, तो हम थोड़ा सा हमारी बॉडी को लिफ्ट कर लेते हैं और हमें जोर से झटका नहीं आता। बट वही हमें गड्ढा नहीं पता होता और एकदम से बैंग ऑन कार गिरती है, जोर से झटका आता है, किसी गर्दन में भी स्प्रेन आ जाता है ना? ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में। सो व्हेन वी नो कि बुरा वक्त आ रहा है, बुरा हमारे साथ होने वाला है, invoke for gods, invoke for angels, do puja, do donations, help people, generate good karma। एंड हम जब अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो इट डजेंट मैटर, वो हमको जोर का झटका धीरे से लगता है। ओके, सो जब ट्रिपल फोर्स दिख जाते हैं, सो अंडरस्टैंड इट इज अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। सो देयर इज अ तूफान इंडिकेटेड, बट उस तूफान को ठंडा करने की पावर आपके पास है। यू कैन राइज अबव दोस thunderstorms, okay? So don't feel scared। देन अपना फेवरेट नंबर आ गया ट्रिपल फाइव। अब ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है, इसमें आपका दिमाग का बहुत जरूरत है, क्योंकि ट्रिपल फाइव डिनोट्स चेंज, एंड चेंज से लोग बहुत घबराते हैं।
People are very very scared of change, but they do not understand कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. पूरी जिंदगी हमारी चेंज पे ही है, सीजन साइकिल सब कुछ होता है, उसका भी एक अलग नंबर है ऑल्दो. अब चेंज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मुझे अपना घर बदलना है. ओके, सो व्हेन आई एम शिफ्टिंग टू अनदर हाउस, आई एम गोइंग टू अनदर लोकेलिटी. इस घर से मैं हैबिचुअल हूँ, आई नो ओके यहाँ पे ये स्विच बोर्ड है, बिना आंखें बंद में आई कैन इजीली स्विच ऑन द लाइट, आई कैन गो टू द बाथरूम, आई नो समबडी इज माई नेबर, आई नो किससे बात करना है, किसको बुलाना है, दुकान बाजार सब मुझे पता है. अब नए जगह आप पहुंचे, 2-3 बार आप इरिटेट हो जाते हो क्योंकि पुराने घर की मेमोरी होती है कि अच्छा उधर फर्स्ट स्विच था ट्यूबलाइट का, इधर फर्स्ट स्विच फैन का हो गया, आप अननोइंगली फैन ऑन कर देते हो एंड देन यू गेट इरिटेटेड, ओहो इस घर में ये अलग है. या आपका पड़ोसी कोई, यू डोंट नो द नेबर एंड आपको जावन के लिए दही चाहिए, क्या करो, व्हाट टू डू, कैसे बात करो. सो जब चेंज आता है लाइफ में, देयर इज लॉट ऑफ chaos. एंड उससे भी ज्यादा हम वो सारा सामान शिफ्ट करते हैं, उस शिफ्टिंग में कुछ छोटा मोटा टूट जाता है, फिर वो बहुत दिनों में सेट होता है. यहाँ हमारे ड्रॉर्स थे, वहां कम थे, कभी ज्यादा थे. सो मेनी थिंग्स हैपन एंड सो मच ऑफ chaos इज देयर एंड वी गेट इरिटेटेड, वी गेट ट्रबल्ड. सिंपल एक घर शिफ्टिंग में, बट बाद में बहुत मजा आता है. वाह ये अच्छी लोकेलिटी है, नेबर भी अच्छा है, बाजार बिल्कुल पास है, स्विगी भी आता है, जोमेटो भी आता है, वाह इसके स्विचेस भी अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है. यू नो सो जब 555 दिखता है, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन योर लाइफ. इट कैन बी आपकी बेस्ट फ्रेंड से रिश्ता टूट सकता है आपका, क्योंकि अब आज आपने तुषार का सेशन ज्वाइन किया है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई है, फ्रेंड इज स्टिल ऑन लोअर वाइब्रेशन, तो या तो आप उसको अपनी तरफ पुल कर लो, या वो पीछे रह गई, आप आगे बढ़ गए. देयर इज अ चेंज. ओके, सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड. तो 555 या 5s जब जब आपको दिखते हैं, मतलब बहुत सारा चेंज आपकी लाइफ में इंडिकेटेड है. इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी योर बिजनेस, आपका घर बदल सकता है. तो कई बार ऐसा भी होता है, वी आर अंडर दिस क्वेश्चन कि घर बदलूं या नहीं बदलूं, क्या पता नया वाला घर खराब हो सकता है, व्हाट डू आई डू. देन यू सी दीज 5s. So God has told you through the angel numbers, it's okay, change the house, it's going to be good. So जब हम ये सिंबल को ले लेते हैं ना, हमने समझ लिया ओके घर चेंज कर लो, बहुत अच्छा है, तो अब 5s नहीं दिखेंगे, अब आपको दूसरे नंबर दिखेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. तो जैसे 2s दिख गए, तो अब आपके नेबर्स भी आपकी हेल्प कर देंगे घर ढूंढने में, पता करने में. सो ये जो नंबर्स हैं, रिपीटेड नंबर्स कीप टेलिंग, एक स्टोरी बनाते हैं हमारी लाइफ में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. आई कीप डूइंग ऑल दिस. सो वो एक नंबर से हमने ले लिया, ओके डन, 333 से आज हम लोग पता है सब. अब क्या नंबर दिख रहा है, अब 345 दिख रहा है. नॉट अ इंटरेस्टिंग नंबर, नो इट्स अ इंटरेस्टिंग नंबर. I will not target on 345. I will target on 345. It's a ascending number. So हम right track पे हैं. अभी भी हम right track पे हैं. Okay? 8 and 9 number of students. We are again on right track. So ऐसे ही हम हमारी लाइफ में नंबर्स को समझेंगे. ओके, सो डरना नहीं है, चेंज से बिल्कुल भी नहीं डरना है. थैंक यू बोलना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर दिस चेंज एंड लेट्स गो फॉर इट. सो ये जो 555 वाला चेंज है, ये अच्छा ही होता है. हम डरते हैं, ये हमारे लिए अच्छा ही होता है. ओके, देन अपना आता है, ये एक इकलौता नंबर है जो मिस इंटरप्रेटेड है, दैट इज नंबर 6, क्योंकि ये है दानवों के गुरु का नंबर. ओके, सो दानवों से हम डरते हैं. अब ये कोई नहीं सोच रहा है कि ये दानवों के भी गुरु हैं, उन दानवों को भी अक्कल देते हैं वो, तो ये कैसे बुरा नंबर हो सकता है. अब लेट अस अंडरस्टैंड ये बुरा क्यों है. क्योंकि 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है मटीरियलिज्म का. ओके, सो व्हेन यू सी 666, सो उसका क्या मतलब है, जब आपको 666 दिखता है, स्टेप बैक,
एक कदम पीछे लीजिए। क्यों? एक कदम पीछे लीजिए और देखिए, क्या मैं इतना ज्यादा फोकस कर रही हूँ ब्रांडेड स्टफ पे, मर्सिडीज पे, एसी पे? इट्स नॉट द रियल मी। ये मेरा लाइफ पर्पस नहीं है। मैं इस दुनिया में मर्सिडीज खरीदने या सॉलिटेज खरीदने नहीं आई थी, कुछ और करने आए थे। वी हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ, यू नो। सो इसलिए जब आपको 666 दिखता है, दैट मीन्स इन अ वे यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। सो स्टेप बैक। इसलिए लोग इसको कह देते हैं ये अनलक्की नंबर है, चाइनीज इसको बोलते हैं कि ये डेविल नंबर है। इट्स नॉट अ डेविल नंबर, बट क्योंकि आपने देखा है लग्जरीज क्या करता है, आदमी को गलत रास्ते पे लेके ही जाता है। यू नो, ऑल फन, इट्स नॉट अ गुड लाइफ। ऑल फन एवरी टाइम। सो 6 को हमको ये अंडरस्टैंड करना है। नाउ अगेन, ईच, या, सो थैंक यू आस्था। सो यू हैव टू ऑब्जर्व कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं। मैं बस आने वाली थी, नेक्स्ट पॉइंट यही था। कई बार ये 6 हमें वो भी बताते हैं, अ पर्सन लाइक मी, अभी आई एम टू मच इनटू दिस स्पिरिचुअल थिंग, यू नो, too much into pranic healing and spirituality and soul and all that. तो अगर मुझे repeated 6 दिखते, that means I need to focus on material aspect also. You know, सारे दिन भजन नहीं कर सकते, आपको पैसा भी कमाना है, घर भी पालना है। Okay, so understand. So every number says something. आपको अपना अलग मतलब बताता है हर नंबर। सो हम फोकस करेंगे, सोचेंगे, हम लिखेंगे भी। We will write these numbers and we will understand. So like अभी थोड़े दिनों पहले I was taking this gratitude journey and one day there was this assignment कि be aware what all the things around you are saying, and I'm always into these numbers. So उस दिन मुझे बहुत सारे 2s दिखे, 222 कई बार दिखे, and हर बार उन 222 के साथ क्या लिखा हुआ आया, in 2 days you are receiving a surprise, a good surprise. And I was like, okay, I'm ready for it. So I kept on saying also, yes universe, thank you, I'm ready for it. You won't believe, 2 दिन के बाद मुझे एक ऐसी गिफ्ट मिली जो मुझे बहुत दिनों से खरीदनी थी, एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं, कहाँ से खरीदूं, अमेजोन से खरीदूं, फ्लिपकार्ट से खरीदूं, ऐसा बवाल चल रहा था। और जिसने भेजा उससे लीस्ट एक्सपेक्टेड था। मतलब नेवर एवर आई थॉट कि शी इज गोइंग टू सेंड मी समथिंग, यू नो। आई वाज फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग कि वहां से कुछ आएगा, यहाँ से कुछ आएगा, बट वो वहां से आया, बट आया। So these numbers are magic numbers. They keep on telling us something magical that's happening in our life. Okay. Then comes 777. 777 नंबर है हमारा इनर स्ट्रेंथ का, हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। जब आपको बार बार 777 दिखता है, मतलब अब आप, यू आर अलाइन विथ योर लाइफ पर्पस। नाउ यू आर अलाइन विद योर सोल पर्पस। जो हमने इस दुनिया में आए थे ना, सो वो जो 3 के साथ मेरे साथ स्टोरी हुई थी, फिर द नेक्स्ट नंबर ऑफ माई लाइफ इज 7। सो ये मेरा क्वा नंबर है, 7। सो देखिए क्या मिरेकल्स हो रहे हैं लाइफ में ना। नाउ सो जब ये नंबर मुझे कब डिस्क्लोज हुआ, व्हेन आई केम टू नो थोड़ा बहुत कि एग्जैक्टली मेरा इस लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। सो जब आपको 777 दिखते हैं या 7 दिखता है या 777 दिखता है, फर्स्टली बी कॉन्फिडेंट, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्पिरिचुअल कोर्स और समथिंग, तो बैंग ऑन, और अच्छा है, क्योंकि you are leading to a spiritual awakening and all the angels are helping you, angelic beings is watching over you. It's a spiritual number. Okay, so it's also a very good number. Then 7 years की cycle होती है। Again मास्टर चोआ कॉक्सवी का एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, और वो बताते हैं ये 7 years की साइकिल बिल्कुल मेरे एस्ट्रोलॉजी चार्ट की तरह चलता है। ये भी अमेजिंग, वो भी बहुत अमेजिंग है। सो 7 इज अ गुड नंबर अगेन। देन उसके बाद आता है अपना प्यारा 8 नंबर, जिससे कि जैसे 3 तिगाड़ा से डर रहे थे, हम 8 से भी डर रहे थे। So 8 is a number of infinity, abundance, prosperity.
और हम क्या फोकस कर रहे थे, 8 कार्मिक नंबर है, 8 शनि का नंबर है, 8 गंदा नंबर है, 8 दिख गया। नो, इट्स अ नंबर ऑफ प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस एंड इन्फिनिटी। उसको जैसे घुमाओ, इनफाइनाइट ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज। सो अगर आपको बाय द वे आप गरीबी से जूझ रहे हैं, या आपको लग रहा है आपकी कंपनी इज नॉट मेकिंग उतना टर्नओवर नहीं है, या आपके हस्बैंड को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, एंड इफ यू कम अक्रॉस, yeah, yes, Shivani, navel chakra has 8 petals, and navel chakra, you have to come to pranic healing to understand that. So अगर आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ, and you see these eights, double eights, triple eights, then understand प्रोस्पेरिटी आ रही है, उनको प्रमोशन मिलने वाला है, आपकी कंपनी में होने वाला है। अब लेट अस अंडरस्टैंड वो शनि वाला एस्पेक्ट। या तो 8 नंबर क्या होता है, हार्डशिप का नंबर होता है। तो हम जब मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। व्हेन यू विल स्टडी देन यू विल कम फर्स्ट इन क्लास। घर में बैठ के 888 खातों पे किताबों पे लिखने से नहीं होगा काम। ऑल्दो क्यों हो जाएगा काम कि आपने 888 लिख लिया, प्रोस्पेरिटी इज नाउ, एंजल्स ने आपको गारंटी कर दी कि प्रोस्पेरिटी तो मिलेगी, तो आप काम करोगे ही। even if you are lazy, even if you are whatever you are, you write 888, prosperity will come. How it will come? Maybe आपके नाम से आपके पापा ने ही शेयर में कुछ लगा दिया, शेयर मार्केट में प्रोस्पेरिटी आ गई, तो आप तो वेले ही बैठे थे घर में, बट आपने सिर्फ 88 लिख लिए थे कॉपी में। So are you getting what I'm trying to say? So we all are going to be here now. So 8 is a very good number. अगर आपके बच्चे का 8 नंबर है, डरिए मत, बिकॉज उसके पास पैसा तो इतना होगा ना, पैसे की पावर बहुत होगी। आई डोंट रिमेम्बर, शायद तो बिल गेट्स का कहीं ना कहीं 8 से कनेक्शन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ, बट है। सो 8 इज अ नंबर। देन ये जस्टिस का भी नंबर है, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर इफ यू कीप सीइंग एट्स। सो अभी आपसे बात करते हैं रियलाइज्ड कि अभी जैसे आपने अपना कोई अगेन फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रेंड से दोस्ती तोड़ ली और आपको एट्स दिख रहे हैं, तो देन थिंक, गलती तो नहीं की मैंने, शायद वो सही थी, मैंने कुछ गलत सोच लिया। सो थिंक, एंड सो अगेन हर नंबर, जब आपको कोई नंबर रिपीटेड दिखे, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए, व्हाट्स गोइंग अराउंड मी, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द आंसर्स। ओके, तो हर बार, जैसे कई बार 888 आपको प्रोस्पेरिटी दिखा रहा होगा, कई बार 888 आपको खूब सारा काम भी दिखा रहा होगा, हर बार वही सेम नंबर, वही मैं, जैसे बचपन में 3 तिगाड़ा था, अब 3 ट्रिनिटी हो गया। So as you rise above, as your soul develops, as you grow, things change. तो मेरा एक बहुत दुखी रहती हूँ मैं हमेशा, जब मेरे फ्रेंड्स या लोग पीछे छूट जाते हैं ना, आई फील वेरी सैड। बट क्या होता है, उनका पर्पस मेरी लाइफ में उतने दिन का ही था, 1 पार्ट, और हम लोग सब अलग वाइब्रेशन पे रेजोनेट होने लग गए। आई डोंट से आई बिकम सम स्पिरिचुअल हायरार्की टाइप बंदा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम सब अलग हो गए। मे बी वो ज्यादा हो गए मुझसे, मैं कम हूँ, तो इट्स ओके, लेट गो कर दीजिए। मैं भी सीख रही हूँ, सीखा नहीं अभी तक, रिलेशनशिप इज अ चैलेंज फॉर मी, बट यस, वी ऑल कैन डू। नाउ द लास्ट एंड फाइनल नंबर 9। नाउ जो 9 नंबर है उसको बोलते हैं क्लोजर, रैप अप। अब इसको भी हर पर्सन अलग तरह से ले सकता है। कोई ये सोच सकता है कि खत्म हो गई कहानी, और कोई ये सोच सकता है कि ये खत्म, अब नया कुछ शुरू होने वाला है। सो व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी कीप सीइंग दीज नाइन्स, दैट मीन्स हमारी लाइफ में कोई एक चीज का क्लोजर हो रहा है एंड अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग। ऐसा नहीं है क्लोजर होके खत्म हो गया, फिनिश नहीं हो रहा है, इट इज ये खत्म हो रहा है, ये साइकिल एंड हो रही है और नया कुछ आ रहा है। So you can be again grateful to God and universe because something new is coming your way. So ये इसका क्या मतलब है? Ending and a new beginning. So हम इसी पे resonate करेंगे।
ओके हम ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्लोजर हो गया, रैप अप हो गया, खत्म हो गई कहानी। एक कहानी खत्म, दूसरी शुरू, और दूसरी अच्छी शुरू। ओके सो ये किसी के साथ भी हो सकता है, यू नो हम हमारे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तब भी वी कैन कम अक्रॉस दीज ट्रिपल लाइंस, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि अब बच्चे के लिए कुछ नया करना है, अभी उसको फैरिक्स नहीं चटाना है, अब उसको फ्रूट्स भी खिलाने हैं मैशअप करके, फिर उसको कुछ और खिलाना है। सो अंडरस्टैंड व्हाट ऑल नंबर्स से इन योर लाइफ। देन देयर आर इंटरेस्टिंग नंबर्स जिनको बोलते हैं मास्टर नंबर्स, जो होते हैं 11, 22, 33। अगेन मेरी न्यूमरोलॉजी क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बट आप लोगों को आज की क्लास के लिए बताती हूँ। तो जैसे अभी 4 बार 3 लिखा हुआ आ गया है ना, उसका एक मतलब हो सकता है 33333। ओके इट कैन बी समथिंग, बट इफ आई फोकस ऑन दिस इट इज 3333, देन इट बिकम्स अ पॉजिटिव थिंग। ओके सो जब भी मास्टर नंबर आता है, तो न्यूमरोलॉजी में भी मैंने सबको सिखाया है कि जब भी मास्टर नंबर आता है हम उसको तोड़ते नहीं है, उसको 1 पे नहीं लाते, उसको एज इट इज रहने देते हैं। सो 11 इज अ नंबर ऑफ थॉट्स, यू नो हमको ये सोचना है कि हमारी सोच सही है। ओके whatever we are thinking is right when we come across these double ones and ones. It's just that we need to move one step ahead to manifest, or we have to ask. So double one पे we have to ask. अब क्या होता है एंजल नंबर्स को लेके ना हम लोग थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि ये ना विश फुलफिलिंग नंबर्स है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लाइफ में कोई एक मैसेज दे रहे हैं। रिमेंबर मैसेंजर ऑफ गॉड, दे आर ट्राइंग टू गिव अस अ मैसेज, नाउ वी हैव टू डीकोड दिस मैसेज वन पार्ट। और अब आपको कभी भी कोई नंबर दिखे, जैसे थ्रीज दिख गया, अब मैंने बताया ना 3 एक बहुत अच्छा नंबर है, तो हमें फील करना है। सो मे बी इफ आई वॉज लुकिंग फॉर एन आंसर कि मुझे ये नई जॉब को चेंज करूं या नहीं करूं, क्या पता मुझे इससे भी गंदी मिल जाए, क्या पता मेरी सैलरी और कम हो जाए, या वहां पे गंदा बॉस हो, या स्टाफ अच्छा ना, यू नो व्हेन यू आर हैविंग दीज क्वेश्चंस एंड दीज थिंग्स एंड यू कम अक्रॉस दीज नंबर थ्रीज, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि आपने मुझे सिग्नल दे दिया, यू आर देयर विद मी, क्योंकि ये कौन है, असेंडेंट गॉड्स है नंबर 3, सो द गॉड्स आर विद यू, एंड देन यू हैव टू फील, यू नो अपने आप को बढ़ाना है, फील करना है, बड़ा सा ऑफिस, एसी रूम, बॉस इतना अच्छा, हर बार आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छी, जो भी सैलरी आप सोच रहे हो, देन और आगे बढ़ जाइए कि उस सैलरी से मैंने ये खरीद लिया। सो जब हम ये सब फील करते हैं, यू नो एक आपने नंबर देखा, 333 देखा, मैम ने कहा था बहुत अच्छा है, यार कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, सब गंदा ही हो रहा है मेरी तो लाइफ में, कोविड भी हो गया मुझे, व्हाट इज दिस। ऐसा नहीं होता है, हमें फील करना है उस नंबर को। दे आर नॉट विश फुलफिलिंग, दे आर टू अपलिफ्ट अस। भगवान ने सिग्नल दे दिया कि इस रास्ते पे आप चल रहे हो, आपको कोविड नहीं होगा। अब आपको फील करना है, आपको सिट्रिक चीजें खानी है, दवाई लेनी है और चलना है। ओके सो ये सारे नंबर्स हमको, जैसा कि मैंने विजन बोर्ड या गोल्स एंड टारगेट्स में आई कीप रिपीटिंग दिस, दैट प्लीज फील एवरीथिंग। कोई अगर आपकी विश है, 1111 पे आपने ब्लेस किया है कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आ गया, ओके ये ब्लेस कर दिया, तो फिर फील करो, मैम ने फोन किया है, योर कंग्रेचुलेशंस, योर सन स्टूड फर्स्ट इन क्लास, देन फील करो ही स्कोर्ड 100 on 100, देन फील करो उसको, उसका जो एनुअल मैगजीन है उसमें भी फोटो आ गई, ही स्टूड फर्स्ट। यू नो जितना आप फील करते रहोगे, तो अगर आपका बच्चा में भी थर्ड आने वाले था ना, यूजुअली वो थर्ड आता है क्लास में, बट सिंस अब 1111 पे आपने ब्लेस कर दिया और फील कर दिया, वो फर्स्ट आने लग जाएगा। अब वो कैसे आएगा, जो फर्स्ट आता था उसने अपने नोट्स उसको दे दिए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। You have to believe. So everything is faith, everything is belief, everything is raising up your vibration. So negative नहीं होना है कभी भी लाइफ में। मैं बोलूं आपको 666 दिख रहे हैं, don't get negative.
बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप नेगेटिव हो गए, यू विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी इन योर लाइफ. सो डोंट गेट नेगेटिव. कुछ भी गलत दिख रहा हो ना, अब इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ आज. राम जी की स्टोरी है, मेरे फेवरेट भगवान राम जी. क्या स्टोरी है कि राजा दशरथ जी को श्राप मिला था. ही वॉज कर्स्ड क्योंकि उन्होंने ना अनजाने से श्रवण कुमार पे तीर चला दिया था. श्रवण कुमार, एज यू नो, उनके पेरेंट्स अंधे थे और श्रवण कुमार मर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स कर्स करते हैं राजा दशरथ को. ऑल्दो वो गिड़गिड़ाते हैं कि मैंने गलती से किया है, मैं हिरन सोच लिया था, बट एनीवेज दे कर्स हिम कि जैसे आज हम तड़प तड़प के मर रहे हैं अपने बेटे के वियोग में, तुम भी मरोगे एक दिन. तो राजा दशरथ के क्या हुआ, बहुत साल बच्चे ही नहीं हुए, औलाद ही नहीं हुई उनके. तो वो काफी पजल्ड हुए, फिर उन्होंने यज्ञ हवन किया. पर देखो इस कर्स में एक अच्छी बात क्या थी पता है, उनके बहुत साल बच्चे नहीं हुए, बट उनको एक कर्स मिली हुई थी कि तुम बच्चे के वियोग में मरोगे. तो बच्चे तो पैदा होंगे जब वियोग होगा ना. सो एवरी कर्स हैज अ ब्लेसिंग. देखो अगेन गूज़बम्प्स. सो ये स्टोरी वेरी रिसेंटली आई थी एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं. तो अगर हमें कोई फ्रेंड ने कर्स भी कर दिया कि जा तेरी मर्सिडीज बिड़ जाए, तो मर्सिडीज तो है हमारे पास, कोई बात नहीं, फिर हम हमारे एंजल्स को बुला लेंगे. गार्जियन एंजल्स प्लीज हेल्प, आज शायद मेरी मर्सिडीज भिड़ सकती है, तो प्लीज मेरे साथ रहना, आई नो यू आर विद मी. नहीं भिड़ेगी आपकी मर्सिडीज. सो यू नो, every curse has a hidden blessing, so we all are going to focus on that blessing rather than curse, and it will change. Now अगर आपको there are many numbers, you know, अगर sequence वाले numbers भी आपको दिखते हैं 12 12 14 14 15 15, again there are very good numbers, again they are trying to tell you something. Now उसके लिए आपको मेरी न्यूमरोलॉजी क्लास करनी पड़ेगी, then you will know, but दे आर सम सिग्नल्स. या फिर आप देख लीजिए कि आपको 12 12 दिखा और आज कुछ बढ़िया हुआ, एक गिफ्ट आ गई, कल फिर से 12 12 दिखा तो हस्बैंड को सैलरी हाइक मिल गया, परसों फिर 12 12 दिखा तो कुछ और अच्छा हो गया. तो देन आपके माइंड में ये सेट हो जाता है कि जब जब मुझे 12 12 दिखता है कुछ अच्छा हो रहा है. सो दैट इज ओके. 404 का भी एक है. सो मैं आज अनुभव आपने न्यूमरोलॉजी क्लास किया है, तो न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सेशंस होगा एंड वी आर गोइंग टू डिकोड दीज नंबर्स, मोर ऑफ दीज नंबर्स. बट आज मैं कुछ नंबर बताती हूँ, जैसे 412 है. अब 412 आपको दिख गया, इसका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, बट इसका क्या मतलब है, छोटा सा डिकोड हम करेंगे. इसका मतलब है 4 कौन है, एंजल्स. 1 कौन है, हम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग. 2 कौन है, इंट्यूशन. दैट मीन्स योर एंजल्स आर अराउंड यू एंड वट एवर यू आर डूइंग इट्स गुड, स्टे पॉजिटिव. ओके, सो ये एक नंबर हो गया. देन दूसरा नंबर 718. 718 क्या कह रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप सही रास्ते पे हो और लॉर्ड ऑफ अबंडेंस यू आर अट्रैक्टिंग इन लाइफ. ओके, then another number 915. 915 क्या इंडिकेट कर रहा है, आप जिंदगी में एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहां पे कुछ खत्म होके एक नया चेंज, एंड चेंज फॉर गुड, न्यू चैप्टर. सो दिस इज हाउ, अगेन these all are repetitions. okay, रोज आपको 915 दिखता है, तो कई बार हम रात में उठते हैं, हमें हर रोज एक ही नंबर दिखता है. आप रात को, मैं ज्यादातर 333 पे जगती हूँ बट कई बार आप 44 पे जग जाते हो. सो ऑल दीज नंबर्स आर टेलिंग यू अ स्टोरी. जैसे 10 10 अगर आपको दिखता है तो 0 क्या हो गया, गॉड का नंबर. 1 क्या हो गया, थॉट्स का नंबर. सो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू आर ऑन राइट ट्रैक, गॉड इज विद यू एंड इट्स अ गुड बिगनिंग. ओके, so 10 10 का ये मतलब है. 11 11 I've told you. 12 12 is also a very good number, क्योंकि इसमें क्या आ गया, इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, दोनों बहुत अच्छे नंबर्स हैं. So angels are going to help you.
They will send some angel to you to help you, and it's a good number. So this was my roller coaster round of numbers. So first we will give thanks, and then we will go into the question answers. Okay? So let us all give thanks to. So मुझे 30 दिख रही है charts भी. क्या करें number 3 का? So hands on your heart. Inhale slowly. एक लंबी सांस लीजिए और thank you to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Chwakaksi, his Guru, Lord Mahaguruji Mailing, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, archangels, guardian angels, spirit guides, and all the angels, angel numbers. We thank you all for being present here. Thank you for helping us. And thank you that in coming days, we get the answers. We get the abundance. We get the prosperity. We get the new spiritual awakening. We get our life purpose. Thank you all of you, to help us to reach, to make us reach to a point which is our spiritual awakening or our life purpose. Thank you all for being present. Thank you for blessing each one of us with a lot of divine protection, divine guidance, divine help, and divine mercy. And of course, a lot of prosperity and abundance and illumination. Thank you in full faith. Inhale the blessings. Share it with everyone around you. So, Atma Namaste. Thank you everybody for coming, for giving me this opportunity to share my knowledge with you. And आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद को भी repeatedly ये सब programs